Grasslands. Grasslands, as the name shows, the land where we found grass. It means the main vegetation of this land is grass. Okay, we find different type of grasses here. Trees and plants are very less in amount, and it is because of the scanty rainfall and the geographical conditions and climatic conditions. We can't find dense forest and tall trees in this area. The trees are in this area are scattered. It doesn't mean कि we can't find the trees. मतलब जो trees हैं वो बहुत अलग अलग दूर दूर एरियाज़ में होते हैं. एक ही एरिया में डेंस फॉरेस्ट की फॉर्म में हमें ट्रीज नहीं मिलते. ओके, so we can say the only main vegetation is grasses and shrubs. झाड़ियाँ, छोटी grasses, long grasses, different type of grasses, and the shrubs are the main vegetation of grasslands. Here you can see the picture of grassland. You can see the different type of grasses here and the small trees or shrubs here. And these are scattered in the area. Here is no dense forest. The next is also, it is the picture of a grassland. Again, trees are not the long height, बहुत ज़्यादा लंबे नहीं है, not tall, and these are not dense, बहुत ही medium height के हैं और कोई dense trees भी नहीं हैं. Okay, this is again the grassland. You can see the trees, but these are far away from each other. Okay, it means we can't find forest here. Dense forest हमें यहाँ पर नहीं मिल सकते. हमें यहाँ grasses मिलती हैं different type की. Okay, so we can divide the grassland in two parts or in two categories on the basis of the climatic conditions. Because of different type of climate, we found different type of grasses in the areas. Okay, the one is tropical grassland and the other one is temperate grassland. Now just tell me which one is the tropical area. Tropical area is between the Tropic of Cancer and Tropic of Capricorn. This area is known as tropical area. Okay, and above this area it is the temperate area या temperate zone. We have read about that. हमने इसके बारे में 6th क्लास में भी रीड किया था, ट्रॉपिकल एरिया और टेम्परेट जोन. ओके, तो यहाँ पर 2 टाइप्स के ग्रासलैंड्स हैं हमारे पास, टेम्परेट ग्रासलैंड एंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. टेम्परेट ग्रासलैंड मीन्स द ग्रासलैंड दैट ग्रोज इन दैट एरिया. जो टेम्परेट जोन में ग्रो होते हैं वो टेम्परेट ग्रासलैंड है, और जो ट्रॉपिकल जोन में ग्रो होते हैं वो ट्रॉपिकल ग्रासलैंड है. Okay, so let's start with the tropical grassland. These grasslands are located between the equatorial forest and hot desert in both the hemisphere. In northern hemisphere as well as in southern hemisphere, we can find the tropical grasslands. Okay, but between these two lines, in two lines के बीच में जो tropical area है, उनके सेंटर में हमें ग्रासलैंड्स मिलते हैं. कहाँ पर? बिटवीन द इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, यानी कि जहाँ पर बहुत ज़्यादा रेनफॉल होती है उन फॉरेस्ट में, और डेजर्ट, दोनों के सेंटर में हमारे पास ग्रासलैंड है. ओके, एक वो एरिया जहाँ पर हाई रेनफॉल है एंड देयर इज़ अनदर एरिया वेयर इज़ लेस रेनफॉल. तो इन दोनों एरियाज़ के बीच में मॉडरेट रेनफॉल का जो एरिया है वहाँ पे हमें क्या मिलता है? ग्रासलैंड. वी फाउंड ग्रासलैंड इन द एरिया वेयर द रेनफॉल इज मॉडरेट. ओके, तो हाई और लेस रेनफॉल के बीच में जो एक मीडियम रेनफॉल है उस एरिया में हमें ग्रासलैंड मिलते हैं. ओके,
सो द ग्रासलैंड्स आर लोकेटेड बिटवीन इक्वेटोरियल फॉरेस्ट, इक्वेटर के पास जो इक्वेटोरियल फॉरेस्ट है वहाँ, और जो डेजर्ट एरिया है, इन दोनों के बीच का जो एरिया है वहाँ पर हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड मिल सकते हैं. ओके, एंड इट इज़ इन द बोथ हेमिस्फीयर, दोनों हेमिस्फीयर्स में उन्हीं एरियाज में हमें ट्रॉपिकल ग्रासलैंड्स फाउंड होते हैं. दीज ग्रासलैंड रिसीव्ड 100 centimeter of rainfall. We have read in the previous chapter that rainfall is measured in centimeters through rain gauge, है ना. तो रेन गॉज से हमें रेनफॉल मेजरमेंट करते हैं हम. तो यहाँ पर भी जहाँ 100 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है उस एरिया में वी फाउंड ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ओके, इट मीन्स दीज ग्रासलैंड receive about 100 centimeter rainfall. Grasses of these regions are very rough, thick and tall. इन एरियाज की ग्रासेस बहुत टॉल होती हैं, थिक हैं, रफ हैं और टॉल हैं. ओके, दीज आर द क्वालिटीज ऑफ द ग्रासेस, that the grasses of this area are rough, thick and tall. Compose is the example of grassland. ये जो कंपोज है ब्राज़ील में, इट इज़ द एग्जाम्पल ऑफ ट्रॉपिकल ग्रासलैंड. ओके, नाउ मूव टू द नेक्स्ट. Temperate grassland. As we have discussed before, we found this in temperate zone. हमें ये temperate zone में मिलता है. ओके, temperate zone के इंटीरियर पार्ट्स में, कॉन्टिनेंट के इंटीरियर यानी कि अंदर वाले पार्ट में हमें ये ग्रासलैंड्स मिलते हैं, कोस्टल एरियाज में नहीं, इंटीरियर पार्ट्स में. ठीक है, इंटीरियर क्या होता है? सेंटर वाला जो बीच का पार्ट है वो इंटीरियर, अंदर. ओके, वी फाउंड दीज ग्रासलैंड्स इन द temperate zone and in the interior of the continent. Very good. And these grassland receive rainfall 25 centimeter to 75 centimeter. कितने सेंटीमीटर रेनफॉल रिसीव करते हैं ये? 25 सेंटीमीटर टू 75 सेंटीमीटर. ओके, एंड जस्ट नाउ टेल मी, ट्रॉपिकल ग्रासलैंड में कितनी रेनफॉल होती है, कितने सेंटीमीटर? Tell me fast. Yes, that is 100 centimeter. Very good. Okay, तो ट्रॉपिकल में 100 सेंटीमीटर है, बट टेम्परेट में 25 से 75 सेंटीमीटर रेनफॉल होती है. ओके, एंड वी ऑल नो दैट टेम्परेट जोन इज कोल्डर देन ट्रॉपिकल जोन. तो इन सम एरियाज these grassland also receive snowfall. कुछ एरियाज़ में जो ज़्यादा कोल्ड एरिया है उन एरियाज़ में रेनफॉल भी रिसीव होती है. ओके, ग्रासेस ऑफ दीज एरियाज इज़ वेरी शॉर्ट एंड सॉफ्ट. इन एरियाज़ की ग्रास शॉर्ट होती है और सॉफ्ट होती है. ओके, बिल्कुल सॉफ्ट, बिल्कुल स्मूथ सी इनकी ग्रासेस ग्रो होती हैं. ओके, एंड इन डिफरेंट एरियाज वी कॉल दीज इन विद डिफरेंट नेम्स. जो ये टेम्परेट ग्रासलैंड्स हैं इन्हें डिफरेंट एरिया में डिफरेंट नेम से कॉल किया जाता है. फॉर एग्जांपल, नॉर्थ अमेरिका में प्रेरीज हैं, दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड. एंड पम्पास इन साउथ अमेरिका. ओके, और डाउन्स इन ऑस्ट्रेलिया एंड वेल्स इन साउथ अफ्रीका. सो दीज आर द टेम्परेट ग्रासलैंड्स. ओके, सेम एज स्टेप्स, ये भी ग्रासलैंड है. ओके, सो दीज आर द डिफरेंट नेम ऑफ टेम्परेट ग्रासलैंड इन डिफरेंट एरियाज. क्लियर? Next, move to desert. Desert means the area where the rainfall is very much scanty or less. जहाँ पर बहुत कम रेनफॉल होती है.
So there was less vegetation due to the less rainfall. Okay, and the soil of that area converted into sand, and that area is known as desert. ओके जहाँ पर लेस वेजिटेशन है, लेस रेनफॉल है, सैंड है, वो नॉर्मली क्या है? डेजर्ट एरिया. ओके, अगेन वी विल डिवाइड इट इनटू टू पार्ट्स, हॉट डेजर्ट एंड कोल्ड डेजर्ट. Deserts are not only hot, these are also cold. Okay, so according to temperature, these deserts are divided into two parts, hot desert and cold desert. Okay, you can see in this picture hot desert. कुछ याद आया? The Rajasthan in our country. This is the desert area of our country and it is known as Thar desert. इंडिया का जो डेजर्ट है उसे थार डेजर्ट कॉल किया जाता है. ओके, इट इज़ द हॉट डेजर्ट. थार डेजर्ट जो है वो हॉट डेजर्ट है. एंड वाई इट इज़ हॉट? बिकॉज द टेम्परेचर इज़ वेरी मच हाई थ्रू आउट द ईयर. Okay, and vegetation is less and rainfall is less. That is why this area is known as desert area. Clear? So let's read. A vast area which has less vegetation due to very scanty rainfall is commonly known as desert. वो एरिया जहाँ पर बहुत कम वेजिटेशन होती है और जो एरिया बहुत कम रेनफॉल रिसीव करता है उस एरिया को हम डेजर्ट कॉल करते हैं. ओके, एंड ऑन द बेसिस ऑफ टेम्परेचर डेजर्ट्स कैन बी कैटेगराइज इनटू टू ग्रुप्स. फर्स्ट इज हॉट डेजर्ट एंड द अदर वन इज कोल्ड डेजर्ट. हॉट डेजर्ट वी कैन फाउंड मेनली इन वेस्टर्न मार्जिन्स. किसी भी कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न साइड में हमें क्या मिलता है? व्हाट वी कैन फाउंड, दीज आर द हॉट डेजर्ट. मैक्सिमम टाइम वेस्टर्न एरिया में. अब हमारा राजस्थान की अगर हम बात करें तो वो कौन सी डायरेक्शन में है? इन विच डायरेक्शन राजस्थान लोकेटेड? इट इज़ इन वेस्टर्न डायरेक्शन. ओके, तो कॉन्टिनेंट के वेस्टर्न एरिया में ही हमें हॉट डेजर्ट मिलते हैं. क्लियर? एंड the temperature of these desert remain very high throughout the year. इन डेजर्ट एरिया का टेम्परेचर पूरे साल बहुत ज़्यादा हाई रहता है. सम इम्पॉर्टेंट हॉट डेजर्ट्स आर सहारा डेजर्ट, थार डेजर्ट, अटाकामा. ओके, दीज आर द नेम ऑफ सम हॉट डेजर्ट. एंड what is the vegetation of that area? Cactus, bushes and shrubs. These are the main vegetation of that area. And sometimes in our country we found बबूल और कीकर trees. ठीक है, बबूल के या कीकर के ट्री हमें मिल जाते हैं. So cactus, shrubs and bushes are the main vegetation and the name of these areas are Sahara Desert, that is in Africa, Thar Desert in India, Atacama in South America. Okay, so these are the names of hot desert. Now let's move to cold desert. Cold desert are mostly found around the polar areas. जहाँ पर पोलर एरियाज, जहाँ पर थ्रू आउट द ईयर स्नो रहती है ड्यू टू द लो टेम्परेचर. ठीक है, तो वहाँ पर हमें कोल्ड डेजर्ट्स मिलते हैं. वी फाउंड कोल्ड डेजर्ट इन दैट एरिया वेयर टेम्परेचर रिमेन्स ब्लू फ्रीजिंग जोन. यहाँ का टेम्परेचर इतना डाउन हो जाता है कि वो आपको फ्रीज भी कर सकता है, यानी कि आपकी बर्फ़ जमा सकता है, फ्रीज कर सकता है आपको. ओके, द कॉमन वेजिटेशन इज मोसेस, लिचन एटसेट्रा. जैसे काई होती है ना,
हमारे घर में ज़्यादा पानी से वो काई ग्रीन ग्रीन हो जाता है, वैसे ही वेजिटेशन है ये मोसेस और लिचन, बहुत स्मॉल वेजिटेशन होती है ये। दीज आर द मेन और कॉमन वेजिटेशन इन कोल्ड डेजर्ट, ओके। एंड द मेन एरियाज आर इन नॉर्दर्न पार्ट, रशिया के नॉर्दर्न पार्ट में, साइबेरिया में है ये डेजर्ट, एंड नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, कनाडा के नॉर्दर्न पार्ट में है ये डेजर्ट, ओके। दीज डेजर्ट्स आर फाउंड इन द एरिया ऑफ साइबेरिया और नॉर्दर्न पार्ट ऑफ कनाडा, इट मीन्स नियर द पोलर रीजन। जो भी ये पोल्स के आसपास का एरिया है, यहाँ पर हमें कोल्ड डेजर्ट्स, we can find cold deserts here, okay. So today we have read about grasslands and desert area. So you have to read that and compare these deserts and grasslands.